سب سے پہلے میری اور میرے خاندان کی طرف سے آپ سب کو ایسٹر کی خوشیاں مبارک ہوں۔ جلالی یا زندہ یسوع کا فضل، سلامتی اور امن آپ کے ساتھ ہو۔ آج 10 اپریل کو ورلڈ ہومیوپیتھی ڈے منایا جا رہا ہے۔ اس ورلڈ ہومیوپیتھی ڈے پر میں آپ کے لیے اچھی صحت، تندرستی، زندگی کی فراوانی، توانا اور روانہ زندگی کے لیے دعا گو ہوں۔ میں تہ دل سے شکر گزار ہوں اور ساتھ ہی مبارکباد پیش کرتا ہوں الشبہ جاوید، ڈائریکٹر مکتبہ پاکستان اور ان کی ٹیم، اور ریورنڈ فادر ایمینول آسی، چیئرپرسن مکتبہ پاکستان، جنہوں نے وقت ضائع کیے بغیر عوامی، مقامی اور رہائی کی الہیات کے فروغ کے لیے آن لائن پروگرام شروع کیا۔ آن لائن پروگرام کے ذریعے مکتبہ کی مطبوعات کی تشہیر ہوگی اور عوامی، مقامی اور رہائی کی الہیات کا فروغ ہوگا۔ میں غالباً آج چوتھا مقرر ہوں، جو میرے لیے عزت اور حوصلہ افزائی کا باعث ہے۔ آج جیسے الشبہ نے کہا کہ آج یہ 5واں پروگرام ہے۔ آج کی کتاب جس پر میں بات چیت کرنے جا رہا ہوں اس کا عنوان ہے نجات اور آزادی۔ یہ کتاب رہائی کی الہیات، لبریشن تھیولوجی پر لکھی گئی ہے۔ یہ کتاب میرے حصہ میں آئی ہے کہ میں اس کو آپ کے سامنے بیان کر سکوں، جس کے لیے میں اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتا ہوں، کیونکہ یہ مکتبہ پاکستان کی روح، ویژن، گول، مقصد اور اس کے وجود کی عکاسی کرتی ہے۔ مکتبہ جی سوری ٹو انٹرپٹ سر۔ سر آپ اپنا کیمرہ پلیز تھوڑا سا نیچے کر لیں، آپ کا فیس نیچے سے نہیں پورا آ رہا۔ ابھی صحیح ہے سر، ابھی ٹھیک ہے، دیٹس فائن سر، یس اوکے، ویری گڈ، یس اٹس فائن سر، تھینک یو۔ مکتبہ پاکستان کی زندگی کا محور اس کے مومنین، عناوین، غریب، مسکین اور ددکارے ہوئے لوگ ہیں۔ وہ مقامی کلیسیا میں مقامی الہیات کے فروغ کے لیے کوشاں ہے۔ وہ ادارتی کلیسیا میں بے آواز، بے زبان، بے بس، بے زور مومنین کی آواز بننے کے ساتھ ان میں ایمان کے سماجی تقاضے، ذمہ داری پوری کرنے کا شعور اجاگر کر رہا ہے۔ یہی ساری باتیں آج کی کتاب میں آپ کے سامنے پیش کراؤں گا۔ اس سے قبل کہ میں کتاب کی ورکردانی کروں، میں اس کا پس منظر پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کتاب رہائی کی الہیات پہ لکھی گئی ہے۔ رہائی کی الہیات نے لاطینی امریکہ میں جنم لیا اور پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ خاص طور پر تیسری دنیا کو بے حد متاثر کیا۔ رہائی کی الہیات کے بانیوں میں گستاوو گتیرس، لیونارڈ بف، کلاؤڈس بف، پولو فرائرے اور ایکٹیوزم میں بشپ رومیرو اور آرچ بشپ ہیلڈا کمارا کے نام مشہور ہیں۔ رہائی کی الہیات لاطینی امریکہ سے کیوں ابھری؟ ایک سوال ہے ہم سب کے لیے۔ یا رہائی کی الہیات اس خطہ میں کیوں ضرورت پیش آئی؟ لاطینی امریکہ میں اس کی کیوں ضرورت پیش آئی؟ کیوں اور جگہ نہیں؟ الہیات تو پہلے بھی ہو رہی تھیں، الہیات کے لکھاری اور الہیات کرنے والے بھی بہت تھے، پھر رہائی کی الہیات کیوں؟ میں لاطینی امریکہ کے خطہ کے متعلق کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ لاطینی امریکہ میں 29 کے قریب ممالک ہیں، جن میں سب سے بڑا ملک برازیل ہے۔ اس خطے کا اکثریتی مذہب مسیحیت ہے۔ اس خطہ کی تاریخ، ثقافت، زبان، بود و باش یکساں ہیں، لیکن ایک چیز جو ابھر کر رہائی کی الہیات کے بانیوں کے سامنے آئی وہ یہ تھی کہ اس خطہ میں امیر اور غریب کے درمیان خلیج بہت گہری تھی۔
امیر اور غریب ایک ہی عقیدہ رکھنے والے ہیں، دونوں ہی بپتسمہ یافتہ ہیں، دونوں ہی ایک جگہ عبادت کرتے ہیں، ایک ہی خدا اور یسوع کو ماننے والے ہیں، لیکن سماجی اور معاشی طور پر ایک دوسرے سے بے حد دور۔ لہذا رہائی کی الہیات کے بانیوں نے مسیحی جماعتوں کو اپنے ساتھ ملا کر کھوج لگانا شروع کیا کہ ایک تخت نشین اور ایک فرش نشین مسیحی کا خدا کے متعلق کیا تجربہ ہے۔ ایک تخت نشین مسیحی کے لیے روایتی الہیات کارگر ثابت ہو سکتی ہے، لیکن ایک فرش نشین مسیحی کے لیے یہ الہیات کوئی معنی نہیں رکھتی۔ لہذا رہائی کی الہیات کا جنم ہوا۔ یہ الہیات غریب، پسے اور دھتکارے ہوئے طبقوں، غلام اور اذیت میں پھنسے ہوئے گروہوں، بیمار، لاچار، فاقہ کش، بے روزگار، بے گھر، قلیل تنخواہ دار، امیروں کے ستائے اور مجبور مومنین کی روحانیت رہائی کی جڑوں کا کھوج لگاتی ہے۔ روایتی الہیات اور رہائی کی الہیات کا فرق کیا ہے؟ یہ بہت ضروری ہے شروع سے ہی، اس سے پہلے کتاب کے متعلق آئیں، لیکن روایتی الہیات کیا ہے اور رہائی کی الہیات کا فرق کیا ہے یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ روایتی الہیات اور رہائی کی الہیات کا فرق یہ ہے کہ رہائی کی الہیات معروضی حالات و واقعات اور کنٹیکسٹ سے شروع ہوتی ہے۔ ان واقعات و حالات اور کنٹیکسٹ کی پاداش میں لوگوں سے اٹھنے والی آہ و پکار، دکھ درد، سسکیاں، کراہنا اور مختلف قسم کے انسانی اذیتوں کا جواب دیتی ہے۔ روایتی علم الہیات عالمگیر ہے، جبکہ رہائی کی الہیات جغرافیائی خطوں کے مطابق جانی جاتی ہے۔ مثلاً لاطینی امریکہ ہوگا تو لاطینی امریکہ کی لبریشن تھیولوجی ہوگی، افریقن ہوگا تو افریقن لبریشن تھیولوجی کہلائے گی، ایشین ہوگا تو ایشیا ہوگا تو ایشین لبریشن تھیولوجی کہلائے گی، یورپین ممالک میں یورپین لبریشن تھیولوجی کہلاتی ہے۔ یہ لوگوں کے طبقات سے بھی پہچانی جاتی ہے، صرف خطوں سے نہیں بلکہ لوگوں کے طبقات سے بھی جانی جاتی ہے۔ مثلاً غریب طبقہ، خواتین طبقہ، سیاہ فام، دلت کمیونٹی، پسے ہوئے مقامی گروہ وغیرہ۔ یہ جغرافیائی خطوں اور انسانی ماحول، شناخت، ذات پات، پدر سری میں بڑھتی اور پھلتی پھولتی ہے۔ لبریشن تھیولوجی، یہ میرا پوائنٹ یاد رکھنا، لبریشن تھیولوجی ایک اور صرف ایک ہی ہے۔ اس تھیولوجی کا نقطہ آغاز صرف ایک ہی ہے اور وہ ہے انسانی۔ کس سننا ہے آپ فاطمہ انول اسیر کی آواز سننی ہے تو Excuse me sir, sorry please. Kindly سب اپنے مائکس میوٹ کریں سیشن کے دوران، بار بار آپ لوگوں کو کہا جاتا ہے پلیز تھوڑا سا۔ کنے رہا ہے آٹا نومی میوٹ کروا دیں مائک سارے۔ لے کو پیسہ سب پاسٹر یونس عنایت مائک میوٹ کروا دیں سب کے۔ اوکے جی سر پلیز کیری آن۔ ہاں جی، لبریشن تھیولوجی ایک اور صرف ایک ہی ہے۔ اس تھیولوجی کا نقطہ آغاز صرف ایک ہی ہے اور وہ ہے انسانی سماجی دکھ اور اذیت۔ اس تھیولوجی کی منزل بھی ایک ہی ہے اور وہ ہے مظلوم عوام کی آواز، مظلوم عوام کو انصاف دلانا، اس کا محور ہے۔ لبریشن تھیولوجی کی لاتعداد اقسام ہیں، بیان کرنے کے طریقے مختلف ہیں، تفسیریں مختلف ہیں۔ دراصل یہ مسئلے سے
मुंह मोड़ने की बात है। असल में अब मैं किताब की तरफ आता हूं जो मुझे सौंपी गई ताकि मैं इस सारे किताब की इख्तिसार के तौर पे आपके सामने पेश कर सकूं। किताब का नाम है निजात और आज़ादी, जिसके मुसन्निफीन लियोनार्ड बॉफ और क्लॉडियस बॉफ हैं, जिनका ताल्लुक लातीनी अमेरिका से, स्पेशली ख़ास तौर पर मुल्क ब्राज़ील से है। वो दोनों काहिन और लिबरेशन थियोलॉजी के बानियों में से हैं। ये किताब हस्पानवी ज़बान में लिखी गई, जिसका अंग्रेज़ी में तर्जमा हुआ और अंग्रेज़ी से उर्दू में तर्जमा किया गया। इसके उर्दू के मुतरजम रेवरेंड फादर रहमत राजा ओपी। इस किताब का अंग्रेज़ी नाम सल्वेशन एंड लिबरेशन है। इस किताब का पेश लफ्ज़ फादर रहमत राजा ने लिखा है और इंतसाब बानमान आलमी अलहियाती धारे के दो हीरो जनाब मुश्ताक असद ने तहरीर किया है। किताब निजात और आज़ादी रिहाई की अलहियात में दिलचस्पी रखने वाले कायरीन के लिए एक रहनुमा किताब और मल्लम के तौर पर किताब है। ये हकीकत है कि रिहाई की अलहियात में ये एक मुश्किल तरीन किताब है। मैं कोशिश करूँगा कि इस किताब का खुलासा आप आसान बनाकर आपके सामने पेश करूँ। अभी हम बाब अव्वल पर बात करेंगे। किताब के बाब अव्वल का अनवान है आज़ादी में निजात। आज़ादी में निजात, आज़ादी के मुतालिक दुनिया में, स्पेशली लतीनी अमेरिका में, ब्राज़ील में बड़ा बाहिस मुबासा चलता रहा है, बातचीत चलती रही है, चल रही है, बल्कि रिसर्च वर्क, ध्यान और ज्ञान ग्रुप्स हैं, ग्रोह हैं जो बातचीत करते हैं, एक दूसरे को मिलते हैं, राइटर किताबें लिखते हैं, राइटर अपना ध्यान और ज्ञान रिसालों में आर्टिकल छापते हैं। लेकिन जितने भी बात कर लें, जितनी भी रिसर्च वर्क हो, इसके लिए ये जानना कि इस आज़ादी के खदो खाल क्या है, आज़ादी कहाँ से शुरू होती है, आज़ादी का मकसद क्या है, ये ज़रूरी है। आमतौर पे ये बहुत खूबसूरत रवाज है राइटर्स के लिए भी, को बड़े बड़े आर्टिकल लिखते हैं, लेकिन एक मसला जो है, मसला रिहाई की अलहियात के मुतालिक वो गहराई में नहीं जा सकते, उस मसले को ढूंढ नहीं सकते। बड़े खूबसूरत अल्फाज, बड़े खूबसूरत रिसर्च होती है, सब कुछ होता है, लेकिन असल बुनियाद जो है, बुनियादी मसला, उसको नहीं पा सकते। तो उस असली बुनियाद को, उस मसले को समझने के लिए आज़ादी के कुछ खदो खाल हैं। सबसे पहला ये इस पॉइंट को समझना कि गरीबों की रूहानियत है क्या। आज़ादी की अलहियात का नुक्ता आगाज़ गरीबों की रूहानियत है। जब तक हम गरीबों की रूहानियत नहीं समझेंगे, हम आज़ादी के अलहियात शुरू नहीं कर सकते, उस पर कोई किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकते। तो गरीबों की अलहियात का जानना बहुत ज़रूरी है कि किस खुदा को गरीब मानते हैं, किस यस्सु को वो मानते हैं, कौन सी अलहियात पर यकीन रखते हैं, उनका मुनफरद तरीका से खुदा से मिलाप कैसे होता है। गरीबों की रूहानियत और उनका खुदा से मिलाप का तजर्बा उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक हम उनके दुखों, अजियत, पसमानदगी, इस्तेसाल, गुलामी, गुर्बत, कसमपुरसी, बेलाचगी की हालत और उसकी जड़ों तक न जाए और उसका करीबी मुशाहिदा, तज्जिया और तजर्बा ना करें। तीन अल्फाज हैं, मुशाहिदा, तज्जिया और तजर्बा। तीन चीज़ें हैं,
जब तक हम इन लोगों की हालत ज़ार की जड़ों में नहीं जाएंगे, मुशाहिदा नहीं करेंगे, मुशाहिदा नहीं करेंगे, उसका तज्जिया नहीं करेंगे और तजर्बा नहीं करेंगे, हम आज़ादी के इलाहायात नहीं कर सकते, हम उस तक पहुंच नहीं सकते। इस पर इन्हीं तीन चीज़ों के लिए मुशाहिदा, तज्जिया और तजर्बा, इस पर लतीनी अमेरिका की साफका की काउंसिल, जिसकी दस्तावेज प्योबला दस्तावेज कहलाती है, प्योबला, जोर देते हैं कि जब तक हम गरीबों की अजियतनाक हालात और दुखों से भरपूर ज़िंदगी का मुशाहिदा, तज्जिया और तजर्बा नहीं करते, हम आज़ादी के इलाहायात को समझ ही नहीं सकते। तो ये प्योबला दस्तावेज़ात बड़ी क्लियरली साफ तरीके से बता रही है कि जब तक हम गरीबों के हालात ज़िंदगी, अजियत और उनके हालात का मुशाहिदा, तज्जिया और तजर्बा नहीं करेंगे, हम किसी सूरत पर भी आज़ादी के इलाहायात को समझ नहीं सकते। दूसरे खदोखाल में दूसरा पॉइंट आज़ादी के इलाहायात का साक्रामेंटी इजहार है। गरीबों की रूहानियत के बाद आज़ादी के इलाहायात का साक्रामेंटी इजहार कैसे किया जा सकता है? साक्रामेंटी इजहार में सबसे पहले अजियत का इजहार ज़रूरी है। साक्रामेंट उसी वक्त होगा जब हम किसी की अजियत को जानेंगे। इस अजियत के इजहार के दो पहलू हैं। दो पहलू में एक करब का चेहरा है जिसमें भूख, बीमारी, नाखानदगी, नाइंसाफ़ी, गुलामी, गरीबी वगैरह है, और दूसरा चेहरा आशाओं और उम्मीदों का चेहरा है जिसमें आज़ादी, शराकत और शमूलियत की उम्मीद नज़र आती है। सो सिर्फ दुख दर्द नहीं, अजियतनाक हालत नहीं, उसको परखना ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ ही उम्मीदों का चेहरा भी देखना ज़रूरी है। उम्मीद रखना भी ज़रूरी है कि इन गरीबों की हालत ऐसी है, इनके लिए ऐसा हो सकता है कि नई ज़मीन, नया आसमान बन सकता है, इनके लिए बेहतर हो सकता है, ये तरक्की कर सकते हैं, ये आगे ज़िंदगी में बढ़ सकते हैं, ये इंसाफ हासिल कर सकते हैं। प्योबला की दस्तावेज़ात में बरमला इजहार है कि हम मुट्ठी भर तबके की ताइशात, ऐशो इशरत एक तरफ और दूसरी तरफ गुर्बत, अफलास से मारे हुए मोमिनीन की हालत ज़ार देख नहीं सकते। एक तरफ हम अमीरों की ऐशो इशरत देखते हैं और दूसरी तरफ गरीबों के गुर्बत और अफलास देखते हैं, जो दोनों ही हम नहीं दे सकते। ये हमारे ईमान का हिस्सा नहीं है, ये मसीह ईमान हमें सिखाता नहीं है। हमें एहतजाज करना है इन दोनों के खिलाफ, गरीबों, अमीरों के ऐशो इशरत के खिलाफ और गरीबों के गुर्बत और अफलास के खिलाफ हमने एहतजाज करना है, उठना है और इसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करनी है। अब कलीसिया में भी काफ़ी बेदारी आ चुकी है। पहले वक्तों में कलीसिया उम्रा के ज़रिए आम मोमिनीन तक पहुँचती थी। मिशनरी का पता है को अमीरों के ज़रिए बड़े बड़े स्कूल, हम पाकिस्तान की बात नहीं कर रहे, मैं जब ये बयान कर रहा हूँ तो पाकिस्तान के बाद लतीनी अमेरिका की बात कर रहा हूँ कि जब मिशनरी आते थे तो बड़े बड़े अमीरों के साथ आते थे, अमीर उनकी फाइनेंसिंग करते थे, उनके कफालत करते थे और अमीरों के ज़रिए ही गरीबों तक पहुँचा जाता था क्योंकि उमरा उनकी कफालत करते थे। कलीसिया मुतहर्रिक तो हुई, बड़ा काम किया है, लेकिन इस सारे अमल में गरीबों के दस्तयाब वसाइल को छुआ तक नहीं। ज़रूरत इस अमर की है कि कलीसिया इखलाकी, समाजी और मजहबी अमाल और मामूल में अमली तौर पर हिस्सा ले। अमल बहुत ज़रूरी है। ये एक यहाँ मैं कहना चाहता हूँ, ये एक स्टाइल बन चुका है। हम बहुत अभी ये भी जो हम ऑनलाइन कर रहे हैं, बहुत खूबसूरत अमल है सीखने का, सुनने का, पढ़ने का, लेकिन सिर्फ सुनने, पढ़ने, सीखने तक महदूद रख दिया जाए तो इट्स अ वेस्टेज ऑफ टाइम। आप सबके लिए, मेरे लिए भी
किस वेस्टेज ऑफ टाइम जब तक इस पर कोई अमली चेहरा सामने ना आए, जब तक कि हम कोई अमल ना दिखाएं गरीबों के लिए, पिछड़े हुए लोगों के लिए, बेआवाज लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए। तो ये ज़रूरी है कि ये फैशन है बहुत अच्छा दुनिया में कि हम बड़ी नई थियोलॉजी, लिबरेशन थियोलॉजी लेकर आए हैं, बड़ा बड़ा काम होता है, लेकिन गरीब वैसे के वैसे रह जाते हैं, उधर के उधर उनकी हालत नहीं बदलती, क्योंकि हम ग्रास रूट्स लेवल पर जाते नहीं हैं, उनकी हालत में हिस्सेदार नहीं होते, उनके हम शाना नहीं बनते, उनको वकार नहीं देते, इज्जत नहीं देते। तो ये ज़रूरी है अमली इक़दाम। अगला पैरा आज़ादी के खदो खाल में अगला पॉइंट आज़ादी के इलाहियात का समाजी तज्ज़ियाती इज़हार है। समाजी जी जी सर आप पहला चैप्टर पढ़ा रहे हैं ना, तो पहला चैप्टर, जो हाँ जी, स्क्रीन है, हाँ जी, सॉरी वो सॉरी बात सॉरी सोम की स्टार्ट हुई सॉरी सॉरी ये एक मिनट, बाब अवल में पढ़ा रहा हूँ, बाब अवल। ये स्क्रीन पे आप लोग नजर आ रहा है, ये बाब अवल, ये इसी पे मैं अभी बात कर रहा हूँ, दूसरे पे नहीं गया। यस सर, अभी अभी ठीक है, यस सर। अभी ठीक है, ओके। आज़ादी के इलाहियात का समाजी तज्ज़ियाती इजहार, ये आज़ादी के खदो खाल है, ये तीसरा नुक्ता है जिस पर मैं बात करना चाहता हूँ। समाजी तज्ज़ियाती इजहार में हम उन तरीक़ों और हालात का जायज़ा लेते हैं जो गुर्बत को जन्म दे रहे हैं, और उन रास्तों की तलाश करते हैं जो गुर्बत के जाल को काट सकते हैं। दो तरीके हैं, एक तो ये है कि उन तरीक़ों और हालात का जायज़ा लेना, जानना, उसका तजुर्बा करना कि गुर्बत क्यों जन्म ले रही है, इसकी वजूहात क्या है, इसका पस मंज़र क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है, कौन इस गरीबों को गरीब रख रहा है। तो इसका सबसे पहला तरीका समाजी तज्ज़िया जब हम करते हैं तो इस तज्ज़िये में गुर्बत को जन्म देने वाली कुव्वतों को हमने देखना है। गुर्बत के जो जाल बुने जाते हैं गरीबों के ख़िलाफ़, उनको हमने देखना है, और उसके साथ साथ ही उन रास्तों की तलाश करनी जो गुर्बत के जाल को काट सकते हैं, और पॉजिटिवली मुस्बत तरीके से हम उन तरीक़ों को ढूंढना है, इसके मुकाबले में उन तरीक़ों को ढूंढना है जो गुर्बत के जाल को काट सकते हैं। इसके लिए 3 ज़राए अपनाए जाते हैं, मेहरबानी से इस चीज़ को समझ लेना। इस गरीबों के हालात गुर्बत को जो जन्म देते हैं उन हालात वाक़यात को जानने के लिए, और उन रास्तों की तलाश करते हैं जो गुर्बत के जाल को काट सकते हैं। इन दो चीज़ों को करने के लिए 3 ज़राए अपनाए जाते हैं। सबसे पहला ज़रिया मुशाहिदा का ज़रिया है, तो पहले मैं कह चुका हूँ, समाजी तज्ज़ियाती ज़रिया, समाजी तज्ज़िया करना, और इस समाजी तज्ज़िये में मुशाहिदा करना। सबसे पहले मुशाहिदा, हमारे हम बाहर जाते हैं, बस्तियों में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, हम देखते हैं कि किस किस किस्म की गुर्बत है, किस किस्म की जहालत है। शायद हाउसिंग का मसला है, गुर्बत का खाने पीने का मसला है, तालीम का मसला है, सैनिटेशन का मसला है। तो ये मुशाहिदा करना है, चीज़ों को वन बाय वन लिखना है, लिख कर देखना है कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो गरीबों को गरीब रख रही हैं। इस मुशाहिदा के 3 अक़साम है आगे। सबसे पहला मुशाहिदा कैसे करते हैं, पहला नुक्ता है हक़ाइक़ को जानना, जो मैंने पहले भी आपको अभी जिक्र किया है, हक़ाइक़ को जानना। एक बस्ती में जाते हैं, वहाँ के हक़ाइक़ क्या हैं, ये गरीबों की बस्ती है, गरीब यहाँ रहते हैं, इसके हक़ाइक़ को जानना बहुत ज़रूरी है। किस वजह से बस्ती गरीब है, किस वजह से उसके मकीन गरीब हैं, तालीम की वजह से, या तालीम नहीं मिली, या अमीरों की वजह से, या सैनिटेशन की वजह से, कुछ भी, सारे हक़ाइक़ को इकट्ठा करना है, हक़ाइक़ को जानना। मुशाहिदा करते हैं तो इन हक़ाइक़ को इकट्ठा करना है। दूसरा, मुशाहिदा करने के बाद, हक़ाइक़ इकट्ठे करने के बाद आपने शऊर की आँख को खोलना है। शऊर की आँख क्या है, मैं
शऊर हमने हकायक जमा कर लिए, हकायक इकट्ठे कर लिए, लिख लिए, लेकिन हकायक जमा करके सिर्फ प्रोजेक्ट लिखना काफ़ी नहीं है, या कि कहीं किसी रिपोर्ट लिख के दे देना काफ़ी नहीं है, या किसी के हवाले कर देना, या सिर्फ जान लेना काफ़ी नहीं है कि हकायक मुझे पता चल गया इस बस्ती के। लेकिन उसके हकायक जानने के साथ साथ अपने शऊर की आँख को उजागर करना है, आँख को खोलना है। शऊर की आँख जब खुलती है तो फिर कोई अमली कदम बनता है। तो शऊर की आँख खोलेंगे जब आप सही वाक़यात से जाने, सही वाक़यात हकायक को जानेंगे और इकट्ठे करेंगे और शऊर की हकीकी आँख खोलेंगे। तीसरा है, शऊर की आँख खुलेगी तो फिर मददगार साबित होना है, मदद करनी है गरीबों की, उनके साथ जाना है, उनके लिए कुछ करना है, उनकी गुर्बत के लिए प्लानिंग करनी है, कोई अमली कदम उठाना है, तो फिर ये मुशाहिदा कामयाब होगा। वरना मुशाहिदा ही रहेगा, हकायक ही रहेंगे, उस पर अमली कदम कोई नहीं होगा। ये 3 किस्म का मुशाहिदा हम कर भी लेते हैं, कुड़ते भी हैं, तकलीफ भी होती है, बहुत तकलीफ होती है दिल में भी कि इनकी हालत बड़ी ख़राब है, ये गरीब के गुर्बत के मारे हैं। जब मैं भी जाता हूँ मुझे भी बहुत दुख होता है कि मैं इनके लिए कुछ कर गुजरूँ, कुछ कर दूँ, इनकी हालत तब्दील हो जाए, इनको कुछ दे दूँ। जोश भी आता है और कुछ कर गुजरने का दिल भी करता है, लेकिन अमली कदम उठाया नहीं जाता। अमली कदम जब नहीं उठाया जाता तो ये रिहाई की इलाहियात के मुनाफी है। ये रिहाई की इलाहियात यहाँ से शुरू ही नहीं हो सकती जब हम अमली कदम नहीं उठाएंगे। मुशाहिदा करें, शऊर की आँख खोलें और मददगार साबित हों, कुछ करें, अमली कदम उठाएं, तो फिर गरीबों की मदद की जा सकती है, कुछ तब्दीली आ सकती है। गरीबों की मदद के लिए दिल में मोहब्बत का होना, नेक नियत और नेक इरादे का होना नाकाफ़ी है। गरीबों की मदद के लिए मेरे दिल में दुख भी है, दर्द भी है, मैं बहुत कुछ करता हूँ, नेक इरादा भी है, नेक इरादे और दिल में मोहब्बत भी है गरीबों के लिए। मैं इसकी मिसाल देता हूँ। एक दोस्त है, एक दोस्त दो दोस्त किनारे दरिया के खड़े हैं। एक दोस्त छलांग लगाता दरिया में, वो डूबना शुरू हो जाता है। डूबते हुए आप देख रहे हैं, आपने भी उसको बचाने के लिए छलांग लगा दी, आप भी डूब गए। क्यों डूब गए? क्योंकि तैराकी आपने सीखी नहीं है, फन आपको आता नहीं है। आपके दिल में मोहब्बत भी है उस दोस्त के लिए, उस बचाने के लिए इरादा भी है, सब कुछ है, लेकिन आपने को क्योंकि तैराकी नहीं आती, आपने दोस्त को बचाने की कोशिश भी की है, बहुत अच्छा है, प्रेज वर्दी, लेकिन आप अपने दोस्त के साथ खुद भी डूब गए। यही ऐसे ही होता है दुनिया में। हम कुछ करना चाहते हैं लेकिन हमारे पास फन नहीं है, हमारे पास वो चीज़ें नहीं है, हकायक नहीं है। अब हर रोज़ हम देखते हैं हमारे इर्द गिर्द फैक्ट्रियों, मिलों और मुख्तलिफ कारोबार का जाल बुना जा रहा है। सब समझते हैं कि ये खूब तरक्की हो रही है, लेकिन सवाल ये है कि ये किसकी तरक्की हो रही है? क्या गरीबों के लिए मिलें बननी है? क्या फैक्ट्रियाँ गरीबों की तरक्की हो रही है? इससे तो अमीरों की तिजोरियां भरी जा रही हैं। ये तरक्की गरीबों के खून से हो रही है। इस सारी तरक्की में अमीर अमीर तर और गरीब गरीब तर होता जा रहा है। ये तरक्की उस वक्त हकीकी तरक्की होगी जब एक समाज में की तंजीम बने, जिसमें मेहनत कशों का हिस्सा हो, जिसमें हर एक की शराकत हो, ज़राए अशिया की पैदावार में मेहनत कश तबका बराबर का शरीक हो, और इसी तरह ताकत और इख्तियार के ज़राए में भी वो बराबर के शरीक हों। उसे हम आज़ादी और रिहाई या लिबरेशन थियोलॉजी का नाम देते हैं। बड़ी तरक्की होती है, फैक्ट्रियाँ लगती हैं, सब कुछ बनता है, लेकिन मजदूर क्या है, मजदूर गरीब लोग क्या है, वो सिर्फ गरीबों के गुलाम रह जाते हैं, गरीबों की गुलामी करते हैं, गरीबों के मजदूर बन के रहते हैं,
उनके खून पसीने से इनकी कमाई सारी बाहर के मुल्क चली जाती है, अमीरों की तिजोरियां भर जाती हैं। और यही लतीनी अमेरिका का हाल था कि हम इसको लिबरेशन थियोलॉजी नहीं कह सकते कि हमारे इर्द गिर्द हम देखते हैं, सारा कुछ देखते हैं, जुल्म देखते हैं, बर्बरियत देखते हैं, ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, फैक्ट्रियाँ, ये गरीबों के खून से बनती हैं, खून सिंचा जाता है इनकी बुनियादों में, फिर कहीं ये जाके अमीर अमीर तरक्की करता है। अगला नुक्ता एक अभी तक मैं बता रहा था, आज़ादी के खदोखाल, ये थे सारे आज़ादी के, ये चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, ये अगर आप जान लेंगे तो आज़ादी के मतलब पता चल जाएगा कि आज़ादी क्या होती है और रिहाई की इलाहियात हम कैसे कर सकते हैं। अगला नुक्ता है तशरीह और वज़ाती ज़रिया, फैसला करना। सारा कुछ हमने वाक़यात, हालात, स्टैटिस्टिक्स सारे हमने, शऊर भी पैदा हो गया, शऊर की आंख भी खुल गई, तजिया भी कर लिया, मुशाहिदा भी कर लिया, अभी एक्शन के लिए हम तैयार हैं। तो इसके लिए फ़ैसला आपने करना है, इसको तशरीह और वज़ाती ज़रिया फ़ैसला करना है आपने। तो फ़ैसला कैसे होता है? पिछले प्रोग्राम में फादर इमैनुअल आसी ने नई और अनोखी तशरीह को तफसीलन बयान किया था। बाइबल मुक़द्दस को लिखे हुए सदियाँ गुजर चुकी हैं और हालात और वाक़यात मुकम्मल बदल चुके हैं, लिहाजा इसकी तशरीह नौ ज़रूरी है। रिहाई की इलाहियात को समझने के लिए पाक कलाम की तशरीह 3 सतहों पर होनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ फैसला कैसे करना है। जब तक आपके दिल में रूहानियत नहीं है, ईमान मजबूत नहीं है, आप अंदरून आपका खाली है, आप अंदरून का आपका चेंज नहीं है, तब्दील नहीं हुआ, अंदरून से आप कन्विंस नहीं है, आप अंदरून से कुछ कर गुजरने के लिए तैयार नहीं है, तो आपको फैसला करना बहुत मुश्किल है। तो वो फैसला कौन सी कुव्वत जो हमें ये करने के लिए उकसाएगी, वो है पाक कलाम। पाक कलाम नविश्ते, पाक नविश्ते, यसु मसीह की अंजील और बाइबल मुकद्दस, इसको जानना, इसके ज़रिए हम कुव्वत पाते हैं, रूह पाते हैं, रूह कुदस की ताकत पाते हैं, जिसके ज़रिए हम फैसला कर सकते हैं, हम और सलीब और कुर्बानी भी देने के लिए तैयार होंगे। तो फादर आसी ने तशरीह 9 पे बहुत कुछ कहा था, वो किताब मैंने खुद भी पढ़ी और बल्कि उस पर काम भी किया था। तो ये पाक कलाम की तशरीह 3 सतहों पर की जाती है। फादर आसी ने बहुत बताया था, मैं दोबारा बताता हूँ कि 3 सतह कौन कौन सी हैं। सबसे पहली सतह निजात की तारीख के आईना में सूरत हाल का जायज़ा लेना कि समाज का रुख खुदा के मंसूबे की जानब है या खुदा के बगावत की जानब है। जब आप निजात की तारीख का मुताला करें, बाइबल मुकद्दस पढ़ें, तो उसमें वो तहरीकें ढूंढें जहाँ पे खुदा खुद, जैसे खरूज का वाक़या है, खुदा खुद कहता है कि मैंने तुम्हारी मज़ल्लत देखी और आसमान से उतरा हूँ ताकि मैं आज़ादी दिलाऊं। तो पाक कलाम में ऐसी बहुत, पाक कलाम भरा पड़ा है गरीबों की आज़ादी के लिए, जो ऐसे हवाले पढ़ें, ऐसे रेफरेंस ढूंढें, ऐसे किताबें पढ़ें जो पाक कलाम में मौजूद हैं, जो गरीबों की आज़ादी के लिए काम करती हैं, जो हमारे सामने रेफरेंस बन सकती है, हमें एक तहरीक दे सकती है, एक जज्बा दे सकती है, रूहानियत दे सकती है, रूह दे सकती है, हिम्मत और ताकत दे सकती है, हमारे अंदरून को तब्दील कर सकती है, हमें शऊर दे सकती है। दूसरी सतह रिहाई की खोज में तनकीदी और गहरा मुताला करना है। क्या आज की तशरीह अमीर और गरीब के दरमियान हायल खलीज को कम करने के लिए कारगर है? क्या यह तशरीह रूहानियत और समाजी मसाइल के दरमियान तवाज़ुन पैदा करती है? बाइबल मुकद्दस को हम जब पढ़ते हैं तो हम सिर्फ ये समझते हैं कि पाक कलाम है, पढ़ना ही सवाब है, पाक कलाम है, इससे हमें बरकत मिलेगी, इससे हमें रूहानियत मिलेगी, हमारी ज़िंदगी तब्दील हो सकती है। हाँ ठीक है, हो सकती है, बहुत अच्छा है, लेकिन रिहाई की इलाहियात की तरफ नहीं हम जा सकते। रिहाई की इलाहियात की तरफ जाना चाहते हैं तो रिहाई की खोज लगानी पड़ती है,
तनकीदी और गहरा मुतालिया करना पड़ता है, तनकीदी मुतालिया करना है। और आज की तशरीह देखना कि अमीर और गरीब बाइबल मुकद्दस है, पाक कलाम में कहाँ खड़े हैं, अमीर कहाँ खड़ा है, अमीर का स्ट्रक्चर क्या है, गरीब का स्ट्रक्चर क्या है, ये उनको चैलेंजेस, अमीरों को क्या है, गरीबों को चैलेंजेस क्या है, उनकी हालत क्या है, अमीरों और गरीबों की हालत क्या है। तो ये इससे हमें रूहानियत मिलेगी और समाजी मसाइल के दौरान हम देखते हैं कि हमें एक रूह मिलेगी कि हम कुछ करना चाहते हैं, अमली कदम उठाना चाहते हैं। तीसरी सतह अलायाती नुक्ता नज़र से है। पाक कलाम हमेशा अलायाती नुक्ता नज़र से पढ़ें और देखना है कि क्या इंसानी तहरीकें, अदारे और कलीसिया नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। क्या वो सरमायादाराना निज़ाम के ख़िलाफ़ गरीबों और मज़लूमों की आवाज़ बन रहे हैं। जब आप पाक कलाम पढ़ें तो उसकी रोशनी में देखें, अपने हालात का तजिया करें, अपनी कलीसियाई माहौल का जायज़ा लें, देखें कि क्या हमने पाक कलाम पढ़ा है, उसमें बड़ी तहरीकें हैं, लेकिन क्या हमारी कलीसिया इस पाक का कलाम पर अमल करते हुए क्या ये तहरीकें, अदारे, हायराकी, बड़े बड़े अदारे, तंजीमें, ये क्या नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। क्या वो सरमायादाराना निज़ाम के ख़िलाफ़ और गरीबों और मज़लूमों के साथ खड़े हैं। आम तौर पे होता है ये, जैसे पहले मैंने कहा कि कलीसिया ने बहुत काम किया, लेकिन पहले कलीसिया लोगों में आती थी अमीरों के साथ, उमरा के साथ, क्योंकि उमरा उनकी कफालत करते थे। आज भी लैटिन अमेरिका में और हमारे पास यही स्टाइल है कि हमारी हायरार्की, कलीसिया के नुमाइंदे, अदारे सब अमीरों के साथ खड़े हैं, अमीरों के साथ खड़े उनकी आशीर्वाद हासिल करते हैं, उनसे फ़ायदा उठाते हैं। आज भी उमरा उनकी कफालत करते हैं और गरीबों के, मजलूमों के आवाज़ कभी नहीं बनते। तो ये तीसरी सतह पाक कलाम को इस नज़रिया से पढ़ना है, पाक कलाम का मुतालिया करना है कि पाक कलाम हमें ये दिखा रहा है, लेकिन हमारे क्या कलीसिया अदारे, हमारे तंजीमें, बहुत सारी तंजीमें, अदारे हैं, हायरार्की है, क्या गरीबों की आवाज़ बांध रहे हैं, मजलूमों की आवाज़ बांध रहे हैं। तीसरा इस चैप्टर का, इस बाब का तीसरा नुक्ता पासबानी मामूल का ज़रिया अमल है। अमल पहले था मुशाहिदा, दूसरा फैसला, तीसरा अमल। कलीसिया पासबानों के लिए ये नाकाफ़ी है कि उन्होंने इस्तेसाली कुव्वत से मुतल्लिक और गरीबों की हालत ज़ार से मुतल्लिक मालूमात और इल्म हासिल कर लिया है। ये काफ़ी नहीं, जैसे मैंने बार बार कहा है, ये काफ़ी नहीं है कि हालत ज़ार के मुतल्लिक मालूमात हासिल कर ली हैं, स्टैटिस्टिक्स इकट्ठे कर लिए हैं और इल्म भी हासिल कर लिया है, डिग्रियाँ भी कर ली हैं, मास्टर्स भी कर लिए हैं, सारा कुछ कर लिया है, PhDs भी कर ली हैं, बल्कि इस अमर की ज़रूरत है कि वो कोई अमली कदम उठाए। डिग्रियां ठीक है, बहुत कुछ है, इल्म भी बहुत है, सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन जब तक अमली कदम नहीं उठाएंगे, उन डिग्रियों का, उन इल्म का, उन स्टैटिस्टिक्स हासिल करने का, सारे वाक़यात हालात का जायज़ा लेने का कोई फ़ायदा नहीं, जब तक अमली कदम ना उठाएं। अमली कदम उठाएं, सियासी, समाजी, माशी, इस्तेसाली तंजीमी ढांचों के सरबराहों की आशीर्वाद हासिल ना करें, उनको खुश ना करें, बल्कि खुद भी खुश ना हो कि मेरे तल्लुकात वज़ीरों के साथ है, मेरे तल्लुकात बड़े बड़े लोगों के साथ है। ये हमारे ईमानी जज्बा नहीं है, ये हमारे ईमान का हिस्सा नहीं है, ये इस्तेसाली कुव्वतें हैं, इनसे किनारा कशी करें और मोमिनीन के तंजीमी ढांचों को मजबूत करें। मोमिनीन के तंजीमी ढांचों को मोमिनीन के तंजीमी ढांचे बनाएं, तश्कील दें, मोमिनीन की तंजीमें बढ़ाएं, ग्रोह बनाएं, कमेटियाँ बनाएं, उनमें जाएं और उनमें जाके आप उनको मजबूत करें और उनकी आवाज़ बने, वो आवाज़ खुद उठाएं, उनके आवाज़ उठाएंगे तो वो आज़ादी के इलाहियात का हिस्सा बनेंगे, वो आज़ादी हासिल करेंगे। इस बाब का आखिरी पॉइंट आज़ादी एक मसीहाई फरीज़ा है। रिहाई की इलाहियात गरीबों के नुक्ता नज़र से माहौल और हकीकत को पढ़ने की जस्तजू है। रिहाई की इलाहियात गरीबों के नुक्ता नज़र से माहौल और हकीकत को पढ़ने की जस्तजू है। आम तौर पे ये होता है कि हम
جب ہم سوشل ورکر، پریسٹ، لیڈرز جب جاتے ہیں لوگوں میں تو وہ اپنے ثقافت، کلچر، سوچ، علم، معلومات سارا کچھ لے کے جاتے ہیں، بڑی بڑی گاڑیوں میں جاتے ہیں، جا کے لوگوں کے ساتھ ملتے ہیں اور وہاں تجزیہ کرتے ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں، فیصلہ کرتے ہیں، سٹیسٹک اکٹھے کرتے ہیں۔ یہ کافی نہیں ہے، یہ یہاں رہائی کی الہیات کا یہ نقطہ ہے کہ غریبوں کے نقطہ نظر سے، غریبوں کی نظر سے ماحول اور حقیقت کا جائزہ لیں، غریبوں کی نظر سے کہ غریب کیا، وہ کیا دیکھ رہے ہیں، ان کی سوچ کیا ہے، ان کی حقیقت کیا ہے، ان کا نقطہ نظر کیا ہے، وہ کیا چاہتے ہیں، ان کی نقطہ نظر سے ان کا ماحول اور حقیقت کو جانیں، ان کے نقطہ نظر سے حقیقت کو پڑھیں۔ یہ انسانی، سماجی اور معاشرتی علوم سے استفادہ حاصل کر کے پاسبانی سرگرمیوں کو غریبوں کی ترقی اور ان کے پرخار راستوں میں ان کے مدد و معاون صاحب بننے پر زور دیتی ہے۔ رہائی کی الہیات لیکن اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ کلیسیا کا ایمان ایک طرف اور سماجی حقیقت ایک طرف رہ جاتی ہے، جو کہ گمبھیر مسائل کو جنم دیتی ہے۔ جب آگے چل کے میں بتاؤں گا کہ اگلے چیپٹر میں کہ اکثر دیکھنے میں آیا کہ کلیسیا کا ایمان ایک طرف اور سماجی حقیقت ایک طرف، ہم صرف ایمان سکھاتے ہیں، سماجی حقیقت کو ٹچ بھی نہیں کرتے، ہم صرف روحانیت دیتے ہیں، سماجی حقیقت وہیں کی وہیں رہ جاتی ہے، سماجی حقیقت کا کوئی تعلقات نہیں ہوتا، چاہے بائبل پڑھا لیں، نمازیں پڑھا لیں، روحانیت دے دیں، صرف ہمارا کام صرف روحانیت دینا ہے، ان کے ایمان کو مضبوط کرنا ہے، سماجی حقیقت سے دور رہتے ہیں۔ یہ جو تضاد ہے ایمان اور سماجی حقیقت کا، خلیج جو ہے درمیان میں، ایمان اور سماجی حقیقت کے درمیان جو خلیج ہے، یہ گمبھیر مسائل کو جنم دیتی ہے، مسائل حل نہیں کرتی بلکہ گمبھیر مسائل کو جنم دیتی ہے۔ کلیسیا کا یہ مسیحائی فریضہ ہے کہ اس کے ایمان کا رخ رہائی کے راستے کی شمولیت سمت ہو۔ تو یہ کلیسیا کا یہ مسیحائی فریضہ ہے کہ اس کے ایمان کا رخ رہائی کے راستے کی سمت ہو۔ تو یہ رہائی کی سمت ہونا چاہیے، رہائی کے راستے کی سمت ہونا چاہیے ہمارا سارا کام، ہمارا سارا فوکس۔ ابھی ہم دوسرے چیپٹر کی طرف جائیں گے، باب دوم اور سوم، ان کے میں مختصر بیان کروں گا کہ باب دوم اور باب سوم، سب سے بڑا باب سوم ہے جو کہ مکالمہ پر مبنی ہے، ایک علم الہیات، ایک مومن اور ایک پریسٹ کے درمیان یہ مکالمہ پر مبنی ہے۔ یہ تقریباً آدھی کتاب تیسرے باب پر مبنی ہے۔ میں اس کا آخر میں ایک صرف سٹائل ان کا مکالمے کا بتاؤں گا۔ ابھی ہم دوسرا باب کرتے ہیں، اس پر بھی دو چیزیں میں صرف بیان کروں گا، آزادی کا ماحول کیا لاطینی امریکہ میں، اور پھر پوپ جان پال دوم کا موضوع آزادی، اور پیوبلا دستاویزات میں آزادی کا موضوع۔ یہ دو ہیں، باقی تو چیپٹر بہت بڑا ہے، لیکن مختصر طور پہ میں ان تین چیزوں پر بات کرنے والا ہوں۔ پہلے جیسے پہلے میں نے کہا لاطینی امریکہ میں آزادی کے الہیات پر مختلف طریقوں سے غور و خوض کیا جاتا رہا ہے۔ اس کے متعلق مشقی بہت ہے، لوگوں نے لکھا ہی بہت ہے، بہت کچھ اس پر کہا گیا ہے، لیکن لاطینی امریکہ نے پیوبلا کے دستاویزات سے بہت فائدہ، بلکہ اس کو اپنا ایک ٹارگٹ بنایا، اس کے ذریعے بہت انہوں نے علم حاصل کیا، ایک راہ ملی ان کو، ایک طریقہ کار ملا کہ کیسے ہم نے رہائی کی الہیات یہ کرنی ہے۔ آزادی کا ماحول، پہلے لاطینی امریکہ میں آزادی کا ماحول کیا تھا، کیوں رہائی کی الہیات، آزادی کی الہیات شروع کی گئی۔ برازیل میں 1960 کے اشرا میں لاطینی امریکہ کے
ख़ास तौर पर ब्राज़ील में इस 1960 में इसका तजिया, इस बात का तजिया किया गया। बहुत सारे थिंकर्स ने, राइटर्स ने, लोगों ने मिलके तजिया किया गया कि हमारी तरक्की जो है, हम दुनिया से पीछे क्यों रह गए हैं, हमारी तरक्की क्यों नहीं हुई, हम गरीब क्यों हैं। इसकी दो वजूहात उन्होंने दरियाफ्त की, अपने लिए दो वजूहात दरियाफ्त की। सबसे पहली वजह ये उन्होंने कही कि हमारे मुल्क में टेक्निकल मशीनरी का अमल जो है वो बहुत सुस्त रवि का शिकार रहा है। बहुत टेक्निकल मशीनरी आई नहीं मुल्क में, बहुत सुस्त रवि का अमल रहा, इसलिए हम दुनिया से पीछे रह गए। दूसरा अमल जो सब ने मिल के ढूंढा लतीनी अमेरिका में, वो ये कि बड़े बड़े अदारे हुकूमत के अदारे, उन्होंने अदारे, दो हैकल अदारे और मराकज़ बड़े बड़े थे जो बहुत पावरफुल थे, लेकिन बाकी आम लोगों के और अदारे उनकी तरफ एड़ियाँ उठा देखते रहे कि ये कब हमारी तब्दीली लाएंगे, तब कब हमें रिहाई देंगे, कब आज़ादी कर देंगे। तो अदारे हुकूमत के बड़े बड़े अदारे थे, लेकिन लोगों में अदारे नहीं बने, मराकज़ नहीं बढ़े, लोगों में तंजीमें नहीं बनी। तो ये लोगों के मोमिनीन के अदारे, मराकज़, ये एड़ियाँ उठा कर हुकूमत के अदारों की तरफ देखते रहे कि ये कब हमें तब्दीली हमारे दरमियान लाएंगे, कब हमारी तरक्की होगी। तो इससे ये लतीनी अमेरिका जो है ये गरीबों की लिस्ट में चला गया, तरक्की गैर तरक्की याफ्ता ममालिक की लिस्ट में चला गया। और ये पूरी दुनिया में इसका तजिया किया गया। अगला तजिया ये था कि जो तरक्की पजीर ममालिक हैं वो जानबूझ के मुल्कों को गैर तरक्की याफ्ता ममालिक की फहरिस्त में रखते हैं, जानते भी हैं कि ये तरक्की कर सकता है, ऊपर आ सकता है, लेकिन उनके मसाइल ऐसे गंभीर पैदा कर देते हैं तरक्की याफ्ता ममालिक कि वो मुल्क तरक्की पजीर ममालिक की लिस्ट में आ ही नहीं सकते। तो इसका तजिया किया मिल के लतीनी अमेरिका में, और इसका मतलब ये निकला कि आज़ादी का मतलब अमल है। उन्होंने देखा कि आज़ादी का मतलब अमल है। आज़ादी का मतलब है कि कैदी को, अमल का मतलब क्या है, आज़ादी का मतलब कि लिटरली आप सोचें कि एक बंदा कैद में है, जब वो कैद से निकलता है तो उसको आज़ादी मिलती है। इस तरह की आज़ादी कि हम एक चुंगल से निकल जाएं, एकदम एक स्ट्रक्चर से निकल जाएं। ये नहीं कि आहिस्ता आहिस्ता नहीं कि आधा टांग उधर, आधे जेल में और आधा बाहर, ऐसे नहीं। मुकम्मल आज़ादी, आज़ादी का मतलब है मुकम्मल आज़ादी और अमली आज़ादी। अमली आज़ादी उस वक़्त मैंने मिसाल दी है का मतलब कैदी जब कैद में है तो जब वो छूटता है तो उसे अमली तौर पर आज़ादी मिल जाती है। इस किस्म की आज़ादी को लतीनी अमेरिका के लोगों ने देखना शुरू किया कि हम मुकम्मल आज़ादी पर काम करना चाहते हैं। आज़ादी बख्श मामूल पर गौर व फिक्र। आज़ादी बख्श मामूल क्या था लतीनी अमेरिका में? आज़ादी की नई तशरीह ने अमल और मश्क पर अपनी तवज्जो मरकूज़ की। जब आज़ादी के मुतालिक सोचना शुरू किया, बातचीत शुरू की, तो ये सामने आया अमल और मश्क। एक अमल है, दूसरा मश्क है। कि मश्क एक अमल, अगर एक कैदी जेल से छूटता है, आज़ादी उसको मिलती है, तो वो आज़ादी को बरकरार रखे, ये नहीं कि फिर दोबारा क्राइम करके जेल में चला जाए। उस मश्क को अपनाना ज़रूरी है कि हमें अगर आज़ादी मिल जाती है तो हम उस आज़ादी को हासिल करने के लिए सबसे पहले कि आज़ादी को हासिल करने के लिए मश्क करें, दोबारा कोशिश करते रहें, मेहनत करते रहें, कोशिश करते रहें, मेहनत करते रहें, लगे रहें, तो आज़ादी मिल जाएगी। तो अमल और मश्क दोनों की ज़रूरत है। गरीब लोगों ने अपना काम शुरू किया। कलीसिया के रहनुमाओं ने, कलीसिया के बहुत सारे अच्छे लीडरों ने लोगों को इकट्ठा किया, लोगों के साथ काम करना शुरू किया। ग्रास रूट लेवल पर गए, मोहल्लों में गए, बस्तियों में गए, लोगों की तंजीमें बनाई और लोगों के तंजीम साजी की ताकि वो अपनी आज़ादी के लिए खुद लड़े।
इन गरीबों ने जब वो इकट्ठा किया, मुनज़्ज़म किया गया उनको, तो उन्होंने अपना काम शुरू किया, जो कि ये वो आम थे जो समाज के लिए कुछ मायने नहीं रखते थे, लेकिन जब ये इकट्ठे हुए, जब इनकी तंजीम साजी की गई, तो एक कुव्वत के तौर पे उभरे। जो समाज ये इस अमल ने उनके अंदर इनकलाबी मख्फी सलाहियतें बाहर ला कर रख दी। तो जब उनकी तंजीम साजी की गई, उनको इकट्ठा किया गया, तो उनके अंदर मख्फी इनकलाबी सलाहियतें जो थी वो बाहर निकल आई और उन्होंने तब्दीली के लिए काम करना शुरू कर दिया। पॉलो फ्रायरे आप जानते हैं, बहुत मशहूर एजुकेशनिस्ट है लैटिन अमेरिका का। उसने मजलूमों की रहाई के लिए एक मौसर तरीका पेश किया है। पॉलो फ्रायरे के ने कहा है कि तमाम तंजीमें, कलीसियाई तंजीमें, अदारे, यूनिवर्सिटियाँ, यूथ, कैथलिक स्टूडेंट अलायाती रिहाई की अलायात पर ज्ञानोदयान करें, ग्रुपों की रहनुमाई करें और ग्रुपों को बताएं कि वो खुद इन्हिसार अपने पे करें, उनकी कुव्वत बने, ताकि वो अपनी कुव्वत को इस्तेमाल करके तो आज़ादी की तरफ काम करें। लोगों की कमिटमेंट आज़ादी के अमल में मुलव्वस होना तब्दीली का बायस बन सकती है। लोगों की कमिटमेंट जब हो जाएगी, उस कमिटमेंट में आप मुलव्वस होंगे, तो इस अमल को ये अमल तब्दीली का बायस बन सकता है। गरीब लोगों की आज़ादी में मसीही ईमान का क्या किरदार है? तो सिर्फ ये आज़ादी दुनियावी आज़ादी नहीं है, आम समाजी आज़ादी नहीं है, बल्कि इसमें ईमान का बहुत बड़ा अमल दखल है। तो उस पहले मैं जिक्र कर चुका हूँ कि पाक कलाम की तशरीह कैसे करनी है, अपने ईमान को मजबूत कैसे करना है, रूह तब्दीली की रूह कैसे अपने आप में पैदा करनी है। तो इसमें तब्दीली के लिए गरीबों में ईमान का उजागर करना, ईमान अमली ईमान, सिर्फ लकीर के फ़कीर वाला नहीं, बल्कि अमली ईमान के मसीह ईमान इस्तेमाल करके आप आज़ादी हासिल कर सकते हैं। और ये ईमान कहाँ से आएगा? ये मत्ती की अंजील उसके 25वें बाब में 35 से 46 आयत में गरीबों के मतलब लिखा है। बहुत तफसील के साथ इसको ज़रूर पढ़ें। और फिर खरूज और रिहाई, खरूज और आज़ादी का जिक्र मिलता है इनमें। आखिरी अदालत का जिक्र मिलता है इस हवाले में। खरूज और रिहाई का जिक्र मिलता है, खरूज और आज़ादी का जिक्र मिलता है इस हवाले में। मत्ती के 7वें बाब में 7 बाब 21 से 23 में रकम है कि ईमान उसी वक्त सूदमंद और मौसर और फलदार हो सकता है जब इस पर अमल किया जाए और मोहब्बत के साथ चला जाए। यस्सु ने गरीबों की हमायत और यकजहती के लिए चुनाव किया, वो इनके साथ एक हो गया, वो रद्द किए हुए इंसानों के साथ था। आज़ादी के इस अमल में उसे जान से भी हाथ धोने पड़े। तो यस्सु मसीह का वाक़या ही एक बहुत मौसर वाक़या है कि उसने गरीबों के साथ वो खड़ा हो गया, गरीबों की खातिर वो मरा। और यस्सु मसीह के अमल को अगर लेकर जाएं तो ईमानी जज्बा मुनव्वर होता है कि हम भी कुछ कर गुजरे हैं, हम भी अपने आप को कुर्बान कर सकते हैं। लिशबा कितना टाइम है? सर हमें काफी टाइम चाहिए आंसर एंड क्वेश्चंस के लिए भी, तो अगर आप कोई 10-15 मिनट में वाइंड अप करें तो हम पार्टिसिपेंट्स को टाइम देंगे ताकि उनकी क्लैरिफिकेशंस जो हैं ठीक वो है, हो पता जाए। चल। थैंक यू मैं 15 मिनट और ले देता हूँ, ठीक है जी, थैंक यू। अच्छा जी। ईमान दरअसल हमारे अंदर रुकावट और ठहरने का अमल शुरू नहीं करता। ईमान जो है ये हमारे अंदर ठहरने का अमल या रुकावट को दूर करता है, मुतहर्रिक करता है। ये जो हमारी ज़िंदगी में ठहराव होता है कि चलो हमें क्या दूसरों से, हम तो खुश हैं, इस ठहराव को, इस रुकावट को ये ख़त्म करता है, बल्कि हमें एक तहरीक और कुव्वत देता है। ईमान कुव्वत देता है, तहरीक देता है कि हम ईमान की रोशनी में आगे बढ़ें। ईमान की रोशनी में 1960 की दहाई का ये वो पास मंज़र और सियाक व सबाक है जिसमें बड़े गहरे तौर पर सोच विचार किया गया और यूं इस फिक्र और सोच को लिबरेशन थियोलॉजी का नाम दिया गया। तो लैटिन अमेरिका में यही तहरीक थी, ईमानी तहरीक थी, जिसने उन्हें कुव्वत दी और ईमान की रोशनी में वो आगे बढ़े और सोच विचार किया, ध्यान व ज्ञान किया और इस सारी सोच विचार को लिबरेशन थियोलॉजी का नाम उन्होंने दिया।
آزادی میں عالمی گفتگو عالمگیر طور پہ رہائی کی الہیات پر بڑی بحث ہوتی ہے. اس پہ بہت سارے لوگوں نے کنٹریبیوٹ کیا ہے, بہت سے لوگوں نے اس پہ لکھا ہے. کامل آزادی کے موضوع پر بات کرتے ہوئے 1966 میں آرچ بشپ ہیلڈا کمارا نے ارجنٹائن میں اپنے خطاب میں یوں فرمایا کہ جس منزل کی ہمیں جستجو ہے وہ یہ ہے ہمیں آزاد ہونا ہے اور باشعور انسان بننا ہے اور آزادی کی شاہراہ پر ترقی کرتے جانا ہے اور ہزاروں قسم کی غلامیوں سے ہمیں خود کو آزاد کرنا ہے تاکہ ہماری بنیادی آزادی ترقی کی طرف بڑھے. اقتصادیات, سیاسیات اور تعلیم کے موضوع پر علیحدہ گفتگو ایک نیا موضوع ہے. اس پہ بہت سے لوگ تنقید بھی کرتے ہیں کہ سیاسی طور پہ نہ اس کو لیا جائے, اقتصادیہ طور پہ نہ لیا جائے اور تعلیمی طور پہ نہ لیا جائے, لیکن اس پہ ایک نیا موضوع لاطینی امریکہ میں یہ سامنے آیا تھا. لاطینی امریکہ کے بر اعظم کے تمام بشپ صاحبان کے اجلاس میں جو مینڈلن میں 1968 میں وقوع پذیر ہوا, اس میں آزادی کے موضوع کو کلیدی حیثیت دی گئی. ان کا موضوع ہی آزادی تھا اور آزادی پر بات چیت کی گئی. میڈلن دستاویزات کی بدولت اعلیٰ عالمی اور سرکاری کلیسیا نے بھی آزادی کے موضوع کو سنجیدگی سے لیا اور لوگوں کی رہائی کے لیے اپنا کام شروع کر دیا. اس پورے باب میں پوپ جان دوئم اور پیوبلا کے دستاویزات ہیں جو میں چند الفاظ میں بتانا چاہتا ہوں. پوپ جان پال دوم کا موضوع ہی آزادی تھا, زندگی کی کا موضوع ہی آزادی تھا. اسی آزادی کو موضوع بنا کر انہوں نے ویٹیکن کو چھوڑا اور یہ پہلے پوپ تھے جنہوں نے دنیا کے ممالک کا دورہ کیا. وہ تمام ان ممالک میں جہاں پسے ہوئے لوگ تھے وہاں پہ گئے, لوگوں سے بات چیت کی اور لوگوں کے حالات زندگی جانے, ورنہ پوپ صاحبان ویٹیکن سے باہر نہیں نکلتے تھے. یہ تو آزادی ہی ایک موضوع تھا جو اس کو لے کر آگے چلے. جب وہ لاطین امریکہ کا دورہ کر رہے تھے تو جہاز میں اس وقت جب پوپ صاحب نے لاطینی امریکہ کا دورہ کیا اس وقت رہائی کی الہیات لاطینی امریکہ میں زوروں پر تھی, بہت کچھ ہو رہا تھا. تو ایک صحافی نے پوپ صاحب سے جہاز میں پوچھا کہ آپ لاطینی امریکہ کا دورہ کر رہے ہیں, آپ یہ بتائیں کہ رہائی کی الہیات لبریشن تھیولوجی کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے. تو پوپ صاحب نے یہ کہا کہ لبریشن تھیولوجی اگر وہ سیاسی طور پہ استعمال کی جائے تو وہ اچھی نہیں ہے, لیکن اگر غریبوں کی آزادی کے لیے اس کو استعمال کیا جائے تو یہ بہت اچھی ہے. تو اس صحافی نے اس کو تروڑ مروڑ کے جیسے عام طور پہ کرتے ہیں, اس نے کہہ دیا کہ پوپ صاحب لبریشن تھیولوجی کے خلاف ہیں. تو یہ عام طور پہ کیونکہ میڈیا سارا یہ امیروں کی لونڈی ہے. امیر میڈیا کو استعمال کرتے ہیں, اپنی زبان بولتے ہیں اور پوپ صاحب کے غلط استعمال کر کے تو یہ کہہ دیا کہ پوپ صاحب رہائی کی الہیات کے خلاف ہیں. یہ لاطینی امریکہ میں بڑا ہو ہا ہوئی اور بعد میں پتہ چلا پوپ صاحب نے یہ کہا تھا کہ یہ صرف اگر سیاست کے لیے استعمال ہو تو غلط ہوگی, غریبوں کی آزادی کے لیے اگر ہو تو یہ بہت اچھی ہوگی. آزادی کی الہیات ایک کھری الہیات ہے, لیکن الہیات کو سیاسی مقاصد کے لیے تشہیر کی جائے یا نظاموں سے استفادہ کرنا شروع کر دے یا پھر اسے تجزیوں کو اپنائے جو قطن مسیح سوچ سے میل نہیں کھاتے, تو پھر یہ الہیات تو ہو سکتی ہے لیکن آزادی کی الہیات نہیں ہو سکتی. تو پوپ صاحب جب میکسیکو گئے ہیں, میکسیکو میں گئے تو مزدوروں سے بات کرتے ہوئے انہوں نے خطاب بھی کیا کہ محنت خدا کی ایک بلاہٹ ہے,
मेहनत 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 कहा और मेहनत के कहा कि मेहनत करना खुदा की एक बुलाहट है जिसके ज़रिए हम नई दुनिया तामीर करते हैं, ऐसी नई दुनिया जिसमें बहनों और भाइयों में इंसाफ और शराकत हो। ये खुदा की बादशाहत को वक्त से पहले देखने की बात है जिसमें कोई नुक्स होगा और ना ही हदबंदियाँ। ये पोप साहब ने मैक्सिको में मजदूरों से किसानों की बात करते हुए कहा था। लतीनी अमेरिका में जाते हुए जब पोप साहब एयरपोर्ट पर उतरे हैं तो उन्होंने सबसे पहले खिताब जो किया है, उन्होंने खिताब का आगाज़ इन अल्फाज से किया, ऐ मुल्क के गरीबों, किसानों, दुखी इंसानों, रद्द किए और हाशिया बरदार शहरियों। ये उनके खिताब थे। तो वो कैसे कह सकते हैं कि रिहाई की इलाहियात जो है वो गलत बात हो सकती है। तो इसके सैंडियागो में कैथीड्रल में उन्होंने वाशका अल्फाज में कहा कि हम इस्तेसाल की ऐसी सूरत हाल की मजम्मत करते हैं जिसमें देहातों और शहरों के रहने वाले गरीबों का इस्तेसाल हो। मैं आपकी आवाज़ हूँ, उनकी आवाज़ जो बे आवाज़ है, उनकी आवाज़ जिनकी ज़ुबान बंद की गई है। पोप की ये ख्वाहिश है कि वो ज़मीरों के ज़मीर बने और इसलिए वो अमल के दावत देते हैं। तो पोप साहब तो इतने, पोप जॉन दोम तो बहुत वाज़िया थे। तो लतीनी अमेरिका ने पोप साहब के जो पैगाम पपाई मरासला जो जारी हुआ, पोप जॉन का दोम का पहला पपाई मरासला इंसानों का निजात दहिंदा अपने अंदर आज़ादी का पैगाम लिए हुए, उसको बड़ा इस्तेमाल किया। इसके बाद मैं प्यूबला की दस्तावेज़ात में आज़ादी का मौजू चंद चीज़ें बताना चाहता हूँ, उसके बाद मैं वाइंड अप करता हूँ। लतीनी अमेरिका में उसकफ साहबान की ये काउंसिल थी जिसमें ये प्यूबला के मकाम पर हुई। इस काउंसिल में उन्होंने आज़ादी के मुतालिक, रिहाई के मुतालिक गरीबों की हालत का तजिया किया, बड़ी तफसील के साथ के लतीनी अमेरिका में गरीबों की हालत कैसी है, अमीर कैसे लूट रहे हैं, इसका स्ट्रक्चर क्या है, यहाँ पे हालत ज़ार क्या है। तो इस प्यूबला की दस्तावेज़ात को लतीनी अमेरिका ने भी अपना मॉडल दस्तावेज़ात इस्तेमाल करते हुए इसको अपने बरे आज़म की बेहतरी के लिए इस्तेमाल किया। पूरी दस्तावेज़ात में इसकी पजीराई हुई। आज़ादी और रिहाई के लायक लतीनी अमेरिका सूरत हाल में हाल और मुस्तक़बिल दोनों के लिए एक बुनियादी नुक्ता तौर पर सामने आई, जिसके ज़रिए इस बराज़म बशारत, खिदमत और मिशन का मकसद अदा होता हुआ नज़र आने लगा। बशारत, खिदमत और मिशन, ये उन्होंने कहा कि ये नज़र आएगा। लेकिन आगे चल के जो रिहाई की इलाहियात के बानियों में से बानी हैं या इस पर जो काम करते हैं, वो कहते हैं कि ये दस्तावेज़ात ने सिर्फ हमें एक रास्ता दिखाया है, एक प्लेटफॉर्म मुहैया किया है, हमें रूह दी है, फैसला करने की जरूरत दी है, लेकिन ये अमली तौर पे नहीं है। अमली कदम जो है हमने उठाना है, इसको इम्प्लीमेंट हमने करना है। दस्तावेज़ात बहुत अच्छी हैं, इसमें बहुत कुछ कहा गया है, लेकिन इसको अमली तौर पे इसको अपनाना हमने है। तो बहुत से रिहाई के इलाहियात के जो कायरीन है वो इसको इस अंदाज़े से देखते हैं कि ये दस्तावेज़ात बहुत अच्छी हैं, ये हमारे लिए गाइडलाइन है, लेकिन इसको अमली जामा हमने पहनाना है। मैं तीसरे बाब की तरफ आता हूँ, क्योंकि वक्त बहुत कम है। तो तीसरे बाब की तरफ, जिसमें माहिर इलाहियात, फ़ाल मसीह कारको मोमन और प्रीस्ट के दरमियान मुकालमा है। ये मुख्तलिफ अनवानात रख के तो पूछा गया है। एक प्रीस्ट से एक दफ़ा पूछा है, एक मोमन से मसीह मोमन से पूछा गया कि आप इस मौजू के मतलब क्या ख्याल रखते हैं, और एक थेलोजियन से। सर स्लाइड तो शो कर दीजिए प्लीज। अच्छा ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू।
جی یہ تیسرا. اس کا موضوع ہے سماج اور بادشاہت. ماہر الہیات فعال مسیح کارکن اور پریس کا مبین مکالمہ ہے. آدھی کتاب تقریباً مکالمہ پر ہے. یہ بہت خوبصورت ہے, اس کو آپ کو پڑھنا چاہیے. یہ ہم اپنے پر بھی اپنے ملک میں بھی اس پر عمل پیرا کر سکتے ہیں, اس پہ کوئی پریکٹس کر سکتے ہیں. میں صرف کیونکہ وقت کم ہے میں صرف ایک سیمپل بتاؤں گا مکالمہ کا. رہائی کی الہیات پر سوال پوچھا گیا ایک مسیح مومن سے, کیا رہائی کی الہیات کے متعلق آپ کیا نظریہ رکھتے ہیں؟ انہوں نے کہا, مسیح مومن نے کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ غربت بہت ہے, پسے ہوئے لوگ بہت ہیں, ان کے لیے تنظیم سازی کریں, ان کے لیے آواز بنیں, ان کی تبدیلی کے لیے, ان کی آزادی کے لیے کام کریں, تنظیمیں بنائیں, گروہ بنائیں, تو پھر تبدیلی آ سکتی ہے. اور اس سے پوری تفصیل جو میں پہلے باتیں کر چکا ہوں. اس نے یہ سماجی طور پہ اس نے تبدیلی کا اظہار کیا کہ سماجی طور پر اس کے تبدیلی لانے کی ضرورت ہے, آزادی لانے کی ضرورت ہے. جب ایک پریسٹ سے پوچھا گیا تو پریسٹ نے کہا ہاں ٹھیک ہے, سماجی آزادی بہت ضروری ہے, یہ سارا بہت اچھا جو آپ نے کہا ہے کہ تنظیم سازی ہونی چاہیے, آواز بننا چاہیے, غریبوں کے حالات بدلنے ہیں, ان کے ساتھ بیٹھنا ہے, دھیان و گیان کرنا ہے, مسائل اکٹھے کرنا ہے, مسائل کے متعلق غور و خوض کرنا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ پریسٹ نے کہا ایمان کا ہونا بھی ضروری ہے. ایمان ہوگا تو تنظیم سازی اور مضبوط ہو جائے گی, ایک جرت ملے گی, ایک روح ملے گی غریبوں کو اپنی تبدیلی خود لانے کے لیے. اور ایک آخری تیسرا جو ہے وہ ماہر الہیات سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا آپ دونوں نے بہت اچھا کہا ہے کہ سماجی طور پر آزادی ہونی چاہیے, اس کے بعد ایمان کا مسئلہ, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ماہر علم الہیات نے کہا کہ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں کوئی ریفرنس لینے چاہیے, پیوبلا کی دستاویزات سے استفادہ حاصل کرنا ہے, پاک کلام سے استفادہ حاصل کرنا ہے, پوپ صاحب کے ڈاکیومنٹ سے استفادہ حاصل کرنا ہے. تو یہ ایک سیمپل میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ تینوں کرائے مختلف, لیکن تینوں کرائے ڈال کے اکٹھی کر کے تو رہائی کی الہیات مکمل ہوتی ہے. تو یہ بہت سارے اور موضوعات لے کے رائٹرز نے دونوں نے تو لے کے تو ان کا مکالمہ کرایا گیا ہے 3 شخصیات کے درمیان. تو اس کو آپ پڑھیں, کتاب بہت خوبصورت ہے. آخری خلاصے کے طور پہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مکتبہ پاکستان کی بہت ساری مطبوعات ہیں, اور میں ریکویسٹ کرتا ہوں اپنے آنے والے اسپیکر سے بھی, جو بھی کتاب آپ پیش کریں, جو کتاب بھی آپ پیش کرتے ہیں چاہے کس موضوع پر بھی ہے, لیکن آخر میں یہ دیکھنا ہے کیا یہ آج کا پیغام جو ہے یہ غریبوں کی تبدیلی کے لیے ہے, غریبوں کی آزادی کے لیے ہے, غریبوں کو کوئی راستہ دکھا سکتا ہے, زنجیریں توڑ سکتے ہیں, استحصالی قوتوں کے خلاف مقابلہ کیا جا سکتا ہے. تو یہ ہر پریزنٹیشن کا اختتام اس پر ہونا چاہیے کہ ہم پاکستان میں اپنے ماحول میں جو پسے ہوئے عوام ہیں, جو پسے ہوئے لوگ ہیں, جو مومن بے آواز بے قوت مومنین ہیں, کیا ہم اس کی قوت بن سکتے ہیں. اور آخر میں کہنا چاہتا ہوں لاطینی امریکہ نے رہائی کی الہیات ہمیں دی ہے, اس سے بہت کچھ سیکھا جا سکتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ لاطینی امریکہ میں جو رہائی کی الہیات ہمیں دی گئی ہے وہ ایک پہلو تھا کہ سب کا ایمان ایک تھا, مسیح ایمان تھا, ایک ہی خدا کو ماننے والے, ایک یسوع کو ماننے والے تھے. لیکن ہمارے ایشیا میں, ہمارے ملکوں میں تو یہ صورت حال اس سے اور بہت گمبھیر ہے. یہاں پہ کتنے لوگ جو مختلف عقیدہ رکھتے ہیں, مختلف کلچر رکھتے ہیں. میں نے شروع میں لاطینی امریکہ کا متعلق بتایا تھا خطے کا حالات, کہ وہاں کلچر, ثقافت, زبان, مذہب, عقیدہ, ہر چیز ایک جیسے تھے.
جس میں یہ رہائی کے الہیات ابری ہے. تو ایشیا میں ہمارے ملکوں میں تو اس سے بہت گمبھیر سچویشن ہے جس میں لوگ پس رہے ہیں, لوگ ستائے ہوئے ہیں. یہاں تو بہت ہی ضرورت ہے رہائی کے الہیات کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ ہم سب کو اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے. تو بہت شکریہ.